राजकुमार की एक फिल्म आई थी वक्त, और उस वक्त में एक डायलॉग था राजकुमार का कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। और मौजूदा वक्त को देखते हुए अब उस डायलॉग के मायने भी समझ आने लगे हैं, क्योंकि ये मौजूदा वक्त में बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। जहां हमने थूकने को लेकर के ये देखा था कि तमाम मीडिया चैनलों ने बड़ा चढ़ा करके ये दिखाने की कोशिश की थी कि ये देखिए जमातियों ने यहाँ थूक दिया, कोरोना हो गया, जमाती बदतमीजी कर रहे हैं, आखिरकार मौलाना साद की गिरफ्तारी कब होगी। यहाँ तक कि लोगों ने कोरोना जिहाद तक के जो तरीके थे उसको भी अपने डीएनए में समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो लोग आसमान की तरफ देख करके थूकते हैं वो थूक उन्हीं के ऊपर आकर के गिरता है। क्योंकि जो नफरत फैलाई गई थी कोरोना को लेकर के, तबलीगी जमात, मुसलमान, तमाम मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, पर उन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए तमाम जमातियों को क्वारंटाइन किया गया। देश के तमाम जगहों पर, देश के तमाम जगहों से पुराने वीडियो उठा करके ये बताने की मीडिया ने खुद कोशिश की कि तबलीगी जमात के लोग जो हैं वो कोरोना फैला रहे हैं, वो थूक रहे हैं, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। डीएनए में एक एक घंटे का ये महा एपिसोड दिखाने वाले सुधीर चौधरी थे, जिन्होंने खास तौर पर नफरत फैलाई तबलीगी जमात और मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये सुधीर चौधरी हैं जो कुख्यात हैं एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने में। और यहाँ तक कि जी न्यूज के तमाम रिपोर्टर, तमाम मीडिया कर्मी जो जी न्यूज के हैं, अब उन लोगों के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। वो बड़ी मुसीबत ये है कि मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है। 1 लाख के करीब संख्या पहुंच चुकी है। 30,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर के घर भेज दिए गए हैं, तो वहीं 3,000 से ज्यादा लोग मौत की आगोश में सो गए हैं। अब उसी कोरोना जिहाद जो खुद सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए से फैलाया था, उसी कोरोना जिहाद के शिकार खुद जी न्यूज के तमाम क्रू मेंबर होने लगे हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। Zee Media's response to COVID-19 cases. The global pandemic has now become a personal story for Zee Media. Last Friday, one of our colleagues tested positive for COVID-19. As a responsible organization, we initiated mass testing of all those who could have been direct or indirect contact with the said individuals. So far, 28 of our teammates have tested positive. Unfortunately, most of them are asymptomatic and not complaining of any discomfort. We believe this is because of early diagnosis and proactive intervention. We are following the best practices to break the cycle and contain the infection in coordination with all government and health authorities. All health protocols and official guidelines are being followed. Our office, newsroom and studios have been sealed for sanitization. The Zee News team has been shifted to an alternative facility for the time being. Meanwhile, the testing of the rest of the employees will continue. The ICMR too has relaxed its testing norms to allow us to test asymptomatic individuals who might be COVID-19 positive and carriers of the disease. This might lead to a greater number of COVID-19 cases being identified, isolated and treated. We believe this is the best way to fight the pandemic. Since Noida has a lot of containment zones, aggressive testing, isolation and treatment is the only way to ensure the safety of our teammates. At the moment, Zee News Corporation Limited has 2,500 employees, by far the largest in the private sector. We are committed to the safety of each one of them. These are challenging times, but COVID-19 has not been able to shake the morale of the team. Zee Media is raring to go, as always. We assure our viewers that our fearless coverage will continue. Such challenges will not be able to break our resolve to discharge our duties with utmost sincerity and unmatched passion. We wish all our employees a speedy recovery. इसी पे सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट करते हुए ट्विटर पे ये लिखा है कि These are difficult times. 28 of my colleagues at Zee News have tested positive for COVID-19. Thankfully, all of them are fine, mostly asymptomatic. I wish them a speedy recovery and salute their courage and professionalism. Sharing the official statement with you. इसके कहने का अर्थ ये है कि इस वक्त Zee Media के हाउस में
टोटल 28 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको कोरोना वायरस का टेस्ट में पॉजिटिव आया है, लेकिन उसमें से एक भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसको सिम्टम्स सामने नज़र आ रहे हो, क्योंकि लगातार इसके इलाज की शुरुआत और इसके टेस्टिंग की शुरुआत पहले ही दौर में कर दी गई थी। यही वजह है कि इन लोगों को बीमारी के असर को बढ़ने से पहले रोकने की सारी कोशिशें जारी हैं। और इस पे पूरे जी मीडिया कॉरपोरेशन ने ये कहा है कि जो 2500 एम्प्लॉय हैं उनके पास, जो कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का नंबर है, वो सबकी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएंगे और इस वजह से किसी भी एम्प्लॉय का मोरल डाउन नहीं होने देंगे। जी न्यूज के दफ्तर में 28 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जो खुद स्टाफ थे, रिपोर्टर थे, तमाम लोगों में कोरोना पाया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि कल तक डीएनए के सुधीर चौधरी ने यह बताने की कोशिश की थी कि एक शख्स को डीएनए की देखरेख में काम करते थे, उनको कोरोना मिला है, हम उनके स्वास्थ्य के लिए लंबी कामनाएं करते हैं। एक को मिला तो तमाम लोगों की जांच की गई और कल तक जो है मैनेजमेंट अधिकारियों को, जो काम करने वाले हैं जी न्यूज में, उन लोगों को धमकाते हुए नजर आया। वो साफ तौर पर कहने लगा कि कोरोना के नाम पर आप बहाना नहीं बनाएंगे, आपको ऑफिस आना पड़ेगा और जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो करनी पड़ेंगी, और जिम्मेवारियां अगर नहीं निभाएंगे तो हमें भी और कंपनियों की तरह आप लोगों के साथ वही करना होगा कि हमें फिर जवाब नहीं मांगना है और ना ही देना है, हम सीधा आपको नौकरी से निकाल देंगे। ये कल तक की बात थी और आज फिर ट्विटर पर हल्ला मचा हुआ है जी न्यूज के कोरोना जिहाद को लेकर के। सोशल मीडिया पर लोग सुधीर चौधरी को टैग करते हुए तमाम बातें लिख रहे हैं। ये वही सुधीर चौधरी है जिसने नफरत फैलाई थी कोरोना को लेकर के और मुसलमानों से जोड़ करके कोरोना जिहाद का लक़ब दिया था। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो कभी ये कहते हैं कि उनके लिए सीरिया में रिपोर्टिंग करना आसान था पर शाहीन बाग में नहीं। कोरोना का मतलब समझाते हैं, जिहाद का मतलब समझाते हैं, और जब एक एफआईआर हो जाती है तो सुर बदले बदले नजर आते हैं। ये तो बात हुई मैनेजमेंट की, जहां 28 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यही अगर एक तरफ की बात करूं, तबलीगी जमातियों को जो नफरत फैलाई थी इन लोगों ने, सुल्तानपुरी में क्वारंटाइन करके रखा गया। 750 से ज्यादा तबलीगी जमाती वहां मौजूद थे। 750 में से एक को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। यहां तक कि तमाम जगहों से तस्वीरें आई कि लगभग लोगों की जो रिपोर्टें हैं, जो जमात से जुड़े थे, उनकी नेगेटिव रिपोर्टें आई हैं। पर मीडिया ने कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, पर वो जी न्यूज है, सरकार के चलने वालों के इशारों पर काम करता है, तो जी न्यूज का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। यहाँ मोहल्ले में अगर एक को कोरोना मिल जाए तो पूरी गली को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, सबको सील कर दिया जाता है, किसी को आगे आने की इजाजत नहीं दी जाती और ना ही किसी को बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है। पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं। पर अब 28 से ज्यादा पॉजिटिव केस जी न्यूज के दफ्तर में मिले हैं, पर अभी तक पुलिस ने ना ही उनको सील किया है और ना ही उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। क्योंकि एक केस के बाद हम देखते हैं कि पूरे परिवार को वो लोग छोड़ देते हैं, पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर देते हैं, पूरी गली को, पूरे जो भी रिश्तेदार होते हैं उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है। आखिरकार जी न्यूज को अभी तक सील क्यों नहीं किया गया है? क्या चूक रही? क्या अब जो है, जो वर्कर थे, उन लोगों को जानबूझ करके लोगों के बीच में भेजा गया जिन लोगों ने कोरोना फैलाया? क्योंकि अब इसे क्या कहेंगे हमारी और तमाम मीडिया, जहां 28 से ज्यादा पॉजिटिव केस कोरोना के जी न्यूज में मिले हैं, क्या वहां भी ये लोग छिपे हुए थे या इन्हें छिपाया गया सरकार के इशारों पर? इन्हीं सब सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। मैं तमाम ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।